On the night of June 23, 22-year-old Mayank Lohar, a resident of Virar, boarded the Churchgate Nalasopara fast local train at Andheri station around 10:42 p.m. after completing his shift as a salesman at a clothing showroom in Andheri East. Heavy monsoon rains were pounding Mumbai that evening, making the journey uncomfortable for commuters. Like many others in the crowded first-class compartment, Mayank preferred some fresh air, but the situation soon turned tragic. A seemingly minor disagreement erupted over whether the coach door should remain open or closed amid the pouring rain. Mayank was among those who requested that the door be shut to prevent rainwater from entering the compartment. This request led to a heated exchange with another passenger, 30-year-old Roshan Suvarna, somewhere between Andheri Borivali or Goregaon Kandivali stations on this western line. Now, what began as a verbal spat quickly escalated when other commuters allegedly joined in and assaulted Roshan Suvarna. Enraged by the confrontation, Suvarna pulled out a knife from his bag and launched a brutal attack on Mayank, stabbing him multiple times in the abdomen and chest inside the moving train. The sudden violence left fellow passengers in shock as blood spread across the compartment floor. Mayank collapsed immediately after the stabbing. A distressing video that circulated widely on social media captured the horrific scene, showing the accused standing nearby with his shirt unbuttoned, staring at the victim lying in a pool of blood before he fled. Suvarna reportedly jumped off the slowly moving train near Borivali to escape arrest. Now, fellow passengers rushed the seriously injured Mayank to nearby Shatabdi Hospital in Kandivali, but doctors declared him brought dead. The young man, who had been commuting daily for work and had no prior enmity with the attacker, lost his life over a trivial issue involving train doors and monsoon rain in one of the world's busiest suburban rail networks. The Borivali Government Railway Police promptly registered the murder case and launched an intensive manhunt using CCTV footage from stations and trains. Roshan Suvarna, who worked in the cargo section at Mumbai Airport and resided in Mira Road, was arrested the next day from areas like Kurla or Panvel. Police recovered crucial evidence during the investigation. Let's take a look. Now, Mayank's grieving family, including his father Ramesh Lohar, expressed profound shock and demanded swift justice, with some relatives calling for the death penalty for the accused. The incident has reignited concerns about passenger safety, rising aggression and the vulnerability of Mumbai's iconic local trains, which ferry millions daily but often witness such flashpoints during peak hours and bad weather. Shahid Ansari is now on the phone with us. Shahid, there are several parts to this story, to this case that are shocking. Firstly, that it happened in a first class coach, फर्स्ट क्लास ट्रेन का कोच था जहाँ पे ये स्टैबिंग इंसिडेंट हुआ. दूसरी बात कि जो दूसरे पैसेंजर्स थे ट्रेन में वो वीडियो बना रहे हैं, पर कोई एक व्यक्ति भी सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसने उसे रोकने की कोशिश की हो, मयंक को बचाने की कोशिश की हो. अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर उससे जूझ लेते तो शायद एक जान बच पाती. जी बिल्कुल. देखिए, जो ये वारदात हुई है वाकई अपने आप में जो है एक शर्म जैसी बात है, क्योंकि एक आरोपी जो है वो सरेआम इस तरह से वार कर रहा है और बाजू में मौजूद जो लोग हैं उनमें से लोग सिर्फ आवाज कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन किसी ने उसको छुपाने की हिम्मत नहीं की. आमतौर पर जो है ये होता है कि अगर हो सकता है कि भीड़ के शायद दो लोग भी कुछ बोलते तो संभव था कि मयंक की जान बच सकती थी, लेकिन इस डब्बे में पूरे अपने लोगों में भी जो है न सिर्फ उस आरोपी ने मयंक पर वार किया बल्कि चाकू से हमला किया, बल्कि ट्रेन रुकने से पहले स्टेशन से उतरकर वो भाग जाने में कामयाब भी हो गया. तो वो अलग बात थी कि जीआरपी ने इस पूरे मामले में जो है तकरीबन 400 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज हासिल किए और इस 400 सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के एक एक मोमेंट को वॉच किया गया, एक एक मोमेंट की जांच की गई. फिर उसके बाद पता चला कि आरोपी यहाँ से भागने के बाद बोरेवली से आने वाली ट्रेन लेकर जो है ट्रेन में सवार होकर वो कुर्ला पहुँचा.
कुर्ला से वो यूपी भागने वाला था, क्योंकि जो है वीडियो वायरल हो चुका था, उसका फेस वायरल हो चुका था, उसका चेहरा लोगों ने पहचान लिया था। तो पुलिस की एक टीम जो है कुर्ला पहुंची और वहां से उसको गिरफ्तार किया। देखिए, डब्बे में मौजूद, बॉगी में मौजूद जो लोग थे, अगर शायद उस वक्त ना भी अगर इंटरफेयर करते, लोग वीडियो बना रहे थे, अगर लोग आवाज़ भी करते एक साथ, तो संभव था कि वो आरोपी उस पर हमला नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि ऐसे समय में लोग जो है वीडियो बनाना ज़्यादा अहमियत समझते हैं, ना कि किसी की जो है जान बचाना। अगर मयंक, उसकी उम्र महज 22 साल थी, और जो सामने आरोपी जो है रोशन स्वर्ण, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो मयंक के सामने जो है हुष्ट पुष्ट और अच्छा मजबूत दिख रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे लोग जो है, जो लोग उसमें मौजूद थे, अगर लोग कोशिश करते तो संभव था कि बचा सकते थे मयंक की जान। लेकिन लोगों ने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद आपने बाकी का उस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो अकेले घूम रहा है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, और रुकने के बाद वो ट्रेन पूरी तरह से रुके उससे पहले ही उसे लगा कि कोई उसे पकड़ ले या जीआरपी उसे पकड़ ले। उसने ट्रेन से ही उतरकर चलती ट्रेन से कूदकर दूसरी ट्रेन पकड़कर भाग गया। हालांकि इस मामले में जीआरपी ने जो है पूरी कोशिश यही की कि उसको कितनी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुंबई छोड़ दिया तो संभव है दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसको गिरफ्तार करने में समय लग सकता है। पुलिस ने 400 से ज़्यादा जो सीसीटीवी हासिल किए, हर उस सीसीटीवी में उसको जो है पहचाना गया, और उसी की बुनियाद पर यह पता चला कि वो आखिर भागकर कहाँ गया। उसके परिवार के लोगों से संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद पता चला कि वो कुर्ला इलाके में है, और उसके बाद उधर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज इसे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में पुलिस हिरासत की मांग करेगी, और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक जानकारी में पुलिस ने जो जानकारी दी है वो यही है, आरोपी और मृतक एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे से उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। जब ये हमला हुआ है तो महज बारिश का पानी और दरवाजा बंद करने को लेकर ये वाद विवाद हुआ। बहस और तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो आरोपी है उसने अपने पास रखे चाकू से पीड़ित के ऊपर हमला कर दिया। शायद फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका और जानकारी देने के लिए। एंड व्यूअर्स, मूविंग अहेड नाउ, चीफ मिनिस्टर योगी